मैं अच्छा खा रही थी, वर्कआउट कर रही थी, करियर में भी मैंने सोच लिया था कि अब तो मेरे को बिजनेस करना है। मैं प्रॉपर तैयार थी कि यार कितना अच्छा करियर है। साथ में क्या लगता था मुझे, वाओ यार मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ। और 1 से 2 दिन में मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। मैं बिल्कुल बदसूरत हो जाती हूँ और स्टार्ट होती है जर्नी मेरी सिंपल रैशेस से। मैं डॉक्टर के पास गई है ना, और दवाई ली, तो डॉक्टर ने बोला ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे जी। पर मैं नोटिस करती हूँ कि यार वो रैशेस ना नॉर्मल रैशेस नहीं है। मेरी ना आंखें 70% ही खुल पा रही थी, 30% नहीं खुल पा रही थी स्वेलिंग के कारण। मतलब ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਜ ਪਈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਜ ਪਈ ਸੀ? अंदर और बाहर दोनों से। तो अगर आप भी कभी पीजीआई गए होंगे या कोई भी पीजीआई गया होगा तो वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, बट 102 बुखार के साथ और इतनी 70% आपकी आंखें खुल रही है, आपको तो नीचे गिर गई ना, और लोग मेरे ऊपर से चल के जा रहे थे, पाँव मेरे ऊपर से चढ़ा के जा रहे थे, और मेरे को ना ऐसे फील हो रहा था यार लोग मेरे ऊपर से ही चल रहे हैं। मम्मा मुझे लेके जाते हैं और मेरे पापा मेरे को उस टाइम फर्स्ट टाइम देखते हैं गाड़ी में। अच्छा। और मेरे पापा बोलते हैं ये किसको उठा के लाई, तू ही मेरी बेटी नहीं है। ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵੂਡੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। और मेरे को पता था कि अगर सोलन में या कहीं भी किसी को नहीं पता लगा कि मुझे क्या हुआ है तो मैं आज ही मर जाऊंगी। हाँ। अंदर से आना शुरू हो गया था कि यार शायद मैं आज मर जाऊं। और डॉक्टर को हमने ये भी बताया कि नींद नहीं आ रही, नींद के 2 इंजेक्शन लगाए, स्टिल मेरे को नींद नहीं आई। तो मेरा ड्रीम था कि काश मेरे को ज़िंदगी में कभी नींद आ जाए। मेरा ड्रीम था कि एक दिन मेरे को नींद आए, और मेरा ड्रीम था कि मैं करवट ले पाऊँ। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और बच्चे बोलते मम्मा मम्मा भूत आ गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्ते ਜੀ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ, ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀटेशन, हीलिंग? बस मुझे ये काम में मज़ा आता है, और जिस काम में आपको मज़ा आता है करने में उसमें आपको टाइम कहाँ पता का लगता ही नहीं है। तो मेरे लिए तो इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग, खुद की हीलिंग करती हूँ, लोगों को भी करवाती हूँ। ਜੀ। हाँ ਪਹਿਲੀ जी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੋ। धन्यवाद। ਜੀ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਫੋਲ ਜੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਸੀਜ਼, ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ जी। हाँ जी, तो ये बात है आज से 2 से 3 साल पुरानी। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा लाइफस्टाइल था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, मैं अच्छा खा रही थी, वर्कआउट कर रही थी, करियर में भी मैंने सोच लिया था कि अब तो मेरे को बिजनेस करना है।
मैं हम्म, प्रॉपर तैयार थी कि यार कितना अच्छा करियर है। हम्म, साथ में क्या लगता था मुझे, वाओ यार मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, और 1 से 2 दिन के में मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। हम्म, मैं बिल्कुल बदसूरत हो जाती हूँ और हम्म, स्टार्ट होती है जर्नी मेरी सिंपल रैशेस से। जैसे कि अच्छा, हमें लगता है कि हमें सिंपल रैशेस हो रहे हैं, हम्म, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो हम्म, जाएंगे। जी, तो मैंने भी वही किया, मैं डॉक्टर के पास गई है ना, हम्म, और दवाई ली। तो डॉक्टर ने बोला ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। जी, पर मैं नोटिस करती हूँ कि यार वो रैशेस ना नॉर्मल रैशेस नहीं है। हम्म, नॉर्मल आपको रैशेस स्किन के ऊपर होते हैं, हाँ जी, बट मुझे वो अंदर से आ रहे थे, मुझे अंदर से इचिंग हो रही थी ब्लड से। और अच्छा, साथ में वो लेयर बाय लेयर आ रहे थे, जैसे एक लेयर आ गई उसके ऊपर 2 परतें बन परतें बन रही परतें, थी, है ना। तो फिर मैंने इसको फिर भी नॉर्मली लिया। फिर नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि मुझे 102 103 बुखार भी है और मेरी बॉडी में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा अब तो कुछ ज़्यादा हो गया है, अब किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। तो मैं सुहाना हॉस्पिटल में चली गई। जी, तो उन्होंने बोला कि आजकल जैसे चिकनगुनिया या डेंगू उस टाइम होता ही है, उस सीजन में हम्म, नवंबर की बात है शायद। जी, तो उन्होंने बोला आपको वो ही हुआ होगा। हम्म, तो मैंने बोला हाँ शायद हुआ होगा। उन्होंने हम्म, कहा घर जाओ आप मेडिसिन लो आप ठीक हो जाओगे। हम्म, 1-2 दिन इसमें चले गए। हम्म, फिर मैं एक 32 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाती हूँ चेक करने। सेम बोला कि हो सकता है आपको कोई एलर्जी हो गई होगी, ये वो इंजेक्शंस लगा दिए, मुझे हो गया। अच्छा, चलता रहा प्रोसेस। फिर मेरे को ये फील हुआ कि यार मेरी बॉडी में रैशेस बहुत बढ़ रहे हैं और स्वेलिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे डर लगने लग गया अपने को देख के। अच्छा, और उस जर्नी में उस टाइम मैं अकेली थी, 1-2 आसपास के फ्रेंड्स थे जो मेरा थोड़ा हेल्प कर देते थे, बट वैसे मैं अकेली थी, घर वाले साथ नहीं थे। अच्छा, तो मैं ऐसे ही अपना, मेरी ना आंखें 70% ही खुल पा रही थी, 30% नहीं अच्छा, खुल पा रही थी स्वेलिंग के कारण। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਜ ਪਈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਜ ਪਈ ਸੀ? अंदर और बाहर दोनों से। अंदर मेरे अच्छा, इंटरनल ऑर्गन स्वेलिंग कर रहे थे, बाहर से मेरी बॉडी स्वेलिंग कर रही थी। अच्छा, बोथ इंटरनली एंड बाहर से भी स्वेलिंग आ गई। हम्म, तो मैं जाती हूँ पीजीआई, और ये मुझे, मैं आज से पहले कभी पीजीआई नहीं गई थी। तो वो मेरे को परमात्मा ने ही रास्ता दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि पीजीआई चले जा। मुझे तो पीजीआई का इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो मैं अकेले पीजीआई चली जाती हूँ, है ना, अपने टेस्ट करवाने। तो डॉक्टर बोलते ना हम आपको कोई मेडिसिन दे सकते हैं, ना हम आपको कुछ भी देंगे, आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाओ। तो मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ। तो अगर आप भी कभी पीजीआई गए होंगे या कोई भी पीजीआई गया होगा तो वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, हाँ कि जी, आप जैसे वहाँ बहुत, हजारों लोग हैं, है ना। तो मैं लाइन में खड़ी हो जाती हूँ, बट 102 बुखार के साथ, और इतनी 70% आपकी आंखें खुल रही है, आपको कम दिख रहा है, नहीं हिम्मत होती है आपकी कि आप लाइन में खड़े हो सको। तो नीचे गिर गई ना, और लोग मेरे ऊपर से चल के जा रहे थे, पाँव मेरे ऊपर से चढ़ा के जा रहे थे। और मेरे को ना ऐसे फील हो रहा था यार लोग मेरे ऊपर से ही चल रहे हैं, पर मैं उनको रोक नहीं पा रही थी। और मैं नहीं कहूँगी वहाँ लोगों की गलती है, क्योंकि वहाँ लोग ऐसी कंडीशन में आते कि सब बहुत बुरे हाल में हैं। हाँ, तो लोग मेरे ऊपर से चल के जा रहे हैं, और मेरे पूरे जो मैं कपड़े पहन के गई थी उसमें जूतों के निशान थे। अच्छा, फिर जैसे तैसे मैंने विल पावर के साथ, श्वेता खड़ी हो जा प्लीज, आज तो टेस्ट दे के जाना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो तू, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जैसे तैसे मैंने टेस्ट दे दिए जी, उसके बाद मैं घर चली गई। और घर गई तो मेरी आंखें 50% ही खुल पा रही थी। अच्छा, मतलब कि हर 1-2 घंटे में ना मेरी स्वेलिंग बढ़ रही थी, आंखें कम खुल रही थी। तो अगले दिन मेरी मम्मा आ गए, अच्छा, यहाँ हिमाचल। आप हिमाचल से हो? हाँ जी, मैं हिमाचल सोलन से हूँ। तो अच्छा मेरी जी, मम्मा आते हैं और मेरे को अपने साथ हिमाचल लेके जाते हैं। उस टाइम मेरी आंखें 80% तक बंद हो चुकी थी। अच्छा, 80% मतलब 20% दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। तब भी मैं हिम्मत करके खुद चल रही थी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरे को किसी का सहारा नहीं लेना, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा मुझे लेके जाते हैं, और मेरे पापा मेरे को उस टाइम फर्स्ट टाइम देखते हैं गाड़ी में। अच्छा, और मेरे पापा बोलते हैं ये किसको उठा के लाई, तू ये मेरी बेटी नहीं है। और मैं तो अभी आपको ऐसे जनरली बता रही हूँ, पापा के वो एग्जैक्ट वर्ड यही थे, वो नहीं पहचान पा रहे थे मुझे, ओहो, और पापा पहचान नहीं पा ਮਤਲਬ रहे। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ? मतलब ना मेरे पापा दिखा नहीं रहे थे, बट ही वॉज क्राइंग इनसाइड, वो अंदर से रो रहे थे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को। फिर पापा मम्मी, जैसे हम हिमाचल से हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान देवी देवता हैं हमारे पे, हम बहुत ਹਾਂ, विश्वास ਹਿਮਾਚਲ करते हैं। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। तो हम देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो पहले हम मंदिर जाते हैं,
शायद इसको कुछ हो गया और किसी ने कुछ कर दिया होगा। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵੂਡੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੂਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। हाँ, सारे पेरेंट्स डरते हैं, स्पेशली हमारे हिमाचल में देवी देवताओं को हम बहुत मान्यता देते हैं, तो हम मंदिर जाते हैं। पर वो सिचुएशन इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम शायद मुझे डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, तो आपकी झाड़ फूंक करवाई? हाँ, मतलब यही है कि ठीक है, वो भी उनका भी अपनी मानना सही था, हाँ, अपनी जगह ना, है ना, वो भी मैं गलत नहीं कहूँगी, वो भी कहीं ना कहीं हिमाचल हम मानते कि ज़रूरी है। हाँ जी। पर जब आपकी कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो ना, फिर मुझे लगता है फिर तो आपको डॉक्टर के पास ही चले जाना चाहिए। हाँ क्योंकि जी। इमरजेंसी में तो डॉक्टर ही काम करते हैं, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब इसके बाद या तो उसको घर लेके जाते हैं, आज एक रात का वेट करते हैं, या कोई आसपास हॉस्पिटल देख लेते हैं सोलन में ही। अच्छा। और मेरे को पता था कि अगर सोलन में या कहीं भी किसी को नहीं पता लगा कि मुझे क्या हुआ है, तो मैं आज ही मर जाऊंगी। हाँ। अंदर से आना शुरू हो गया था कि यार शायद मैं आज मर जाऊं। उसका रीजन था आंखें ना खुलना और सांस ना ले पाना, सांस लेने। अंदरों ऑर्गन स्वेल कर गए तो साह हाँ। बहुत औखा होना। तो बोलने की हिम्मत थी नहीं। पेरेंट्स को एक लाइन बोलती हूँ कि यार मेरे को ना आप पीजीआई लेके जाओ, अगर आज पता नहीं लगा मुझे क्या हुआ है तो मैं मर जाऊंगी। और यही मेरे पेरेंट्स को भी सेम लग रहा था कि ये बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। तो वो जो सोलन से पीजीआई का सफर है ना, 2 घंटे का, वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल सफर था, क्योंकि उसमें मेरे को लग रहा था कि अगर मैं रोई चिल्लाई तो मेरे पेरेंट्स टूट जाएंगे। पर अंदर से ऐसे मन करता कि चिल्लाऊं, मर जाऊं आधे रास्ते में, कि सांस नहीं आ रही, कैसे सांस लूं। सांस लेने के लिए तरस रही थी मैं। तो फिर जैसे जैसे पीजीआई हम पहुंच गए, उसके बाद पीजीआई में डॉक्टर्स ने बोला हो सकता है इसका ब्लड इन्फ्यूजन करवाना पड़े, यानी कि पूरा ब्लड निकाल के नया ब्लड डालना पड़े। अच्छा। कि जब आपको कोई सीवियर एलर्जी हो जाती है तो आपके ब्लड से ही होती है ना वो। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्लड निकालना पड़े, तो उसके लिए फॉर्म साइन करवाए मेरे भाई से, और कहा कि फिर इमरजेंसी में फिर से टेस्ट हुए, पर उसकी रिपोर्ट जल्दी आ गई क्योंकि वो इमरजेंसी के टेस्ट थे। तो डॉक्टर ने उस टाइम डायग्नोज नहीं कर पाए, टाइम लगता है हर चीज को। तो उन्होंने कहा कि इसको अभी घर लेके जाओ, इसको डेली आपने लाना है। तो ओपीडी से मेरा इलाज होना स्टार्ट हो गया, पर मेरे को डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था, टेस्ट देने पड़ते थे। पहले तो इनिशियली डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल दवाई दे दी और स्टीरॉइड मेडिसिन दे दी, जो कि हर एक एलर्जी वाले लोगों को देते हैं। 2-3 दिन बाद डायग्नोज किया डॉक्टर ने कि इसको ड्रेस नाम का एक स्किन डिजीज हो गया है। ड्रेस? हाँ, उसका नाम ड्रेस है। मतलब ये बीमारी का नाम ड्रेस है जड़ी तानू हुई जी? हाँ जी। तो अब डॉक्टर्स के लिए भी वो केस नया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी रेयर डिजीज। तो डॉक्टर्स ने भी उस पर अटेंशन दिया और मेरे को प्रॉपर मेडिसिन देनी शुरू कर दी। और उन मेडिसिन में मैं 15-16 अगर मेडिसिन खा रही थी तो उसमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स थे, जो मुझे हर 3 टाइम में लेने थे। ओके। आप यकीन नहीं करोगे, अगर एक भी डोज में उसकी मिस कर देती थी ना, तो जो मेरे रैशेस थे ना स्किन पे, वो डबल ट्रिपल होके बाहर आ जाते थे। मतलब कि एक दवाई की डोज मिस करना और मैं अपने आप को और डबल फील कर रही थी। तो इतनी ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए मेडिसिन जी। तो ऐसे से चलता रहा और हर चढ़ते दिन के साथ ना मेरी बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि अब मेरा लिवर भी डैमेज हो गया है। दवाइयां खाने स्टीरॉइड मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, चांसेस यही हैं कि लिवर डैमेज हो गया। जो वैल्यू 20-30 होती है नॉर्मल इंसान की लीवर की, हाँ जी, वो मेरी 300-400 पहुंच चुकी थी। ओहो। हर एक जो भी मैं टेस्ट करवा रही थी नॉर्मल तो कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर को कहीं ना कहीं बीच में ये भी लगा, क्योंकि मेरी रिकवरी तो हो नहीं रही थी। हाँ जी। बस मैं मेडिसिन के सहारे जिंदा थी जैसे तैसे करके, पर देयर वाज नो रिकवरी। और उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मेरी रातों और दिन की नींद चली गई थी। अच्छा। मतलब 24 घंटे तक मैं बस एक दीवार को देख के जी रही थी। एक सफेद दीवार थी मेरे सामने, और सुबह रात को सोचती थी कि यार आज मर जाना है, अब ये दर्द मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। और सुबह सोचती थी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, श्वेता तुझे जीना है तो अपने लिए ना सही माँ बाप के लिए जी। देख तेरे सामने कैसे पड़े हैं, उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो बस वो उसमें प्रोसेस में दिन जा रहे थे, रातें जा रही थी, रिकवरी नहीं हो रही थी मेरी। फिर डॉक्टर सोच रहे थे कि हो सकता है इसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया, कोई कैंसर तो नहीं है, बायोप्सी मेरी होती थी, है ना। अच्छा।
और कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं, तो मेरे हर एक हेपेटाइटिस बी, HIV, ऐसे 300-400 टेस्ट होते थे। अच्छा। डेली मेरे टेस्ट होते थे। तो मेरी जो कलाई है ना, ये यहाँ पे मेरे को सिरिंज और ये सरिंज के निशान ही मिलते थे। डेली मेरे से ब्लड निकाल दिया जाता था और उससे मेरा ब्लड कम हो रहा था, मुझे फील हो रहा था। सारे निशान थे बॉडी में। 1 महीना तो मैंने ऐसे ही गुजारा है, जिसमें सिर्फ मुझे ये याद है कि मैं हॉस्पिटल जाती थी और आती थी और मुझे कोई लेके जा रहा है, और मेरे को कुछ याद नहीं है। बस ये याद है कि मैं मरना चाहती थी उस टाइम रात को और सुबह जीना चाहती थी। अच्छा। तो ये हमारा 1 महीना ऐसे चला गया जी। उसके बाद से फिर एक दिन क्या होता है कि मैं रात को सोई होती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ और करती हूँ नहीं, उसके बाद करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मैं देखती हूँ कि एक लाइट मैं फील कर पाती हूँ। हॉस्पिटल थी? नहीं, घर पे थी मैं। अच्छा। मतलब हॉस्पिटल में कुछ दिन में जाना होता था। अच्छा। रात मेरी घर पे ही होती थी। जी। तो रात को लाइट मुझे फील होती है एक ना, और वो मुझे ऐसा फील होता है कि अब तो तेरी रिकवरी हो जाएगी। अच्छा। और उसमें मैंने एक चीज़ और फील की, मैंने एक अपने आप को ना सरेंडर कर दिया। जैसे कि पहले मैं लड़ रही थी खुद से कि नहीं मुझे ठीक होना है, ठीक होना। जैसे आप सरेंडर टू यूनिवर्स, टू द डिवाइन एनर्जी, कि भगवान आपने जिंदगी दी है, रखना है रख लो, मारना है तो आज ही मार लो। आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ। और उस दिन से मेरी रिकवरी स्टार्ट होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। और इस रिकवरी डे से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको मैं अच्छा लगेगा मुझे आपके साथ में शेयर करूँ। जी जरूर। तो होता क्या है कि थोड़ी रिकवरी जैसे स्टार्ट होनी शुरू होगी ना, तो मेरे पापा और भाई घर चले जाते हैं, क्योंकि सबको अपना काम करना है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं और मम्मा वहाँ रह जाते हैं। और वो रात ऐसी थी कि मेरी बॉडी में इतनी दर्द हो रही थी कि मैं नहीं सहन कर पा रही थी। हर एक बॉडी का ना एक बना होता है लिमिट, इससे ज्यादा दर्द वो सहन नहीं कर पाते। हाँ जी। कर पाती किसी की भी बॉडी। तो मेरी बॉडी नहीं सहन कर पा रही थी। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मेरे को अभी के अभी PGI लेके चलो। पर बीइंग मॉम और हिमाचली मदर, उनको ना कैब बुक करनी आती ना कुछ। तो मैंने अपनी जैसे तैसे करके कैब तो बुक कर दी। उसके बाद मैंने मम्मी को एक लाइन बोली, इसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मम्मा मेरे को कैब में लेके जाते हैं। कैब ड्राइवर ने हेल्प कर दी उतारने में। अब सबसे ज्यादा जो वो चीज मैंने देखी कि मेरी मम्मा ऐसे सबके सामने भीख मांगते हैं कि मेरे को मेरी बेटी को कोई तो स्ट्रेचर पे बिठा के ले जाओ। क्योंकि सबके अपने पेशेंट थे वहाँ पे, किसको टाइम था कि वो मेरे को स्ट्रेचर पे बिठा सके। मेरी मम्मी ने मेरे को, जैसे आप सोचो कि मैं ऐसे सोई हूँ और मुझे फील हो रहा है कि मेरी मम्मा भीख मांग रहे हैं, रो रो के चिल्ला चिल्ला, मेरी बेटी को कोई तो स्ट्रेचर पे ले जाओ, मर जाएगी ये। अपनी माँ को ऐसे कंडीशन में देखना। फिर कोई आया, उसने मेरे को स्ट्रेचर पे जैसे जैसे बिठाया, फिर से वही प्रोसेस। फिर डॉक्टर को हमने बताया कि बहुत दर्द हो रही है। डॉक्टर ने बहुत सारे पेन किलर के इंजेक्शन लगाए। और डॉक्टर को हमने ये भी बताया कि नींद नहीं आ रही। नींद के 2 इंजेक्शन लगाए, स्टिल मेरे को नींद नहीं आई। इंजेक्शन के बाद तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को नींद आ जाती है, मेरे को नहीं आई। तो मेरा ड्रीम क्या था उस टाइम पे, जैसे हम ना लाइफ में हम सोचते हैं कि यार हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। पर जो इंसान अपनी जिंदगी से लड़ रहा होता है ना, उसका ड्रीम पता क्या होता है कि उसको एक दिन नींद आ जाए, चैन से सो जाऊं। चैन क्या, सो ही जाए, चैन भी ना हो उस नींद में। कि मतलब नींद तो आवे। हाँ जी। तो मेरा ड्रीम था कि काश मेरे को जिंदगी में कभी नींद आ जाए। मेरा ड्रीम था कि एक दिन मेरे को नींद आए। और मेरा ड्रीम था कि मैं करवट ले पाऊं। ऐसे छोटे छोटे ड्रीम थे मेरी लाइफ में उस टाइम। तो बस ये चलता रहा। फिर मुझे पता लगा कि अब मेरे को रिकवरी तो स्टार्ट होने लगी है। फिर नए बीमारियां, डॉक्टर ने बोला इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, उसको नींद नहीं आ रही। अच्छा। कानों से आवाजें आती थी बहुत, तो कानों वाले डॉक्टर के पास भी लेके जाते थे। कान भी ठीक नहीं, इंसान की बॉडी तो ठीक थी नहीं। बॉडी तो मैंने आपको बता दिया। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको इसमें जी। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और बच्चे बोलते मम्मा मम्मा भूत आ गया। और रोने लग गए। फिर हमें उस दिन हम किसी खाना खाने चले गए किसी जगह पे। तो मैंने ना ऐसे कवर किया हुआ था फेस, तो थोड़ा सा ना ऐसे होगा क्योंकि मुझे तो कवर करने की आदत नहीं है। और कोई खाना खा रहा था ना, ऐसी शक्लें बना रहा था, तो मुझे लगा यार मैं किसी का खाना खराब कर रही हूँ। मतलब मेरी शक्ल देख के लोग डरते थे। मतलब ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੱਲੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसी स्वेलिंग, इतनी स्वेलिंग, उसके साथ फेस में बहुत सारे रैशेस, गंदे गंदे रैशेस, जिसको देख के आपको खाना खाने का मन ना करे। अच्छा। इतनी जैसे ये लेयर है ना अभी मेरी इतनी पतली सी, वो इतनी मोटी थी।
ओहो इतनी मोटी लेयर हो गई थी और इतनी गंदी आंखें ऐसी, और आई आई कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये आईब्रोज भी उतर गए थे। तो खाना खाने का मन नहीं करता था लोगों को मेरी शक्ल देख के। तो फिर मेरा भाई मुझे एक दिन बताता है, क्योंकि मैंने तो शीशा देखना छोड़ ही दिया था, शीशा देखने से डर लगता था कि कहीं खुद को देख के डर ना जाऊं मैं। तो मेरा भाई बताता है, यार तेरे ना पैचेस में बाल जा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने देखा यार यहाँ पे इतना बड़ा कुछ है मुझे। तो मैंने शीशा देखा तो उसने बोला देखो एलोपेसिया हो गया। अब मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ कि ना मेरे पास बॉडी बची है अच्छी, इतनी मोटी मेरी बॉडी है, उसमें भी सारे रैशेस हैं, ना मेरा लिवर ठीक है, कान ठीक है, नींद मेरे को आती नहीं, अब मेरे बाल भी नहीं रहे, अब जिंदगी में बचा क्या, अब मैं क्यों जीऊं? तो मेरे को ये क्वेश्चन था यार, अब किस लिए जीना है मेरे को? तो उसका फिर इलाज हुआ, इंजेक्शन लगे, डॉक्टर ने दवाई दी। तो मेरे लिए दवाई खाना और कोई नई बीमारी मुझको हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई थी। अच्छा, मुझे आदत हो चुकी थी कि अब डॉक्टर ने मुझे बीच में ऐसे भी बोला इसको ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब ये अपने आप बीमारी बन जाती शरीर च। मैं बताती हूँ, जब आप कोई भी हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड ले रहे होते हो, तो स्टीरॉइड का काम बॉडी में होता है आपके इम्यून सिस्टम को बंद करना, ताकि एलर्जी ट्रिगर ना हो सके, क्योंकि इम्यून सिस्टम से ही एलर्जी ट्रिगर होती है, बढ़ती है। हाँ जी, मतलब बढ़ती है। तो आपका इम्यून सिस्टम जब आप एक बाहर से जो स्टीरॉइड आपकी बॉडी को चला रहे हैं, तो हमारी बॉडी को समझ नहीं आ पाता कि कैसे रिएक्ट करना है, और इम्यून सिस्टम आपका इतना वीक हो जाता है कि आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाते हैं। देयर आर काइंड ऑफ बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज। तो एक डॉक्टर ने मुझे ऐसे भी बोल दिया था कि तेरे को ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, और किसी को भी ऑटोइम्यून डिजीज हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, मतलब मैक्सिमम केसेस में, जितना मेरे को नॉलेज है वो ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम रहता है। तो मैंने बोला अब ये भी हो गया, अब क्या बचा जिंदगी में। तो इसमें एक मेरी ना एक स्पिरिचुअल है, जो एक स्टोरी, अगर आप चाहो तो मैं आपको बताऊं। जी जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है और मेरे को लगता है काफी लोगों को उससे इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। तो मेरे को एक दिन ऐसी मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मुझे ना नैना देवी माता के मंदिर जाना है। मेरे को नैना देवी माता के मंदिर के बारे में इतनी कुछ खास नॉलेज नहीं थी, ना मैं वो पर्सन थी जो मंदिर ज्यादा जाती हो, मानती थी पर मंदिर नहीं जाती थी, तो खुद अंदर से आती है। और इस जर्नी में ना मेरे माँ बाप रोते थे, मेरा भाई भी रोता होगा, मैं कभी रोई नहीं, एक आंसू मेरी ऐसे नहीं आया। तो मंदिर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था, रीजन बिंग चढ़ाई बहुत है। हाँ, 300 पौड़ियां है ना, नैना देवी माता दे 300 पौड़ियां ने और मेरे जैसा इंसान एक पौड़ी ना चढ़ पाए, वो 300 सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। तो मेरे को ऐसे पकड़ के मेरे दो भाइयों ने, मेरे दो भाई थे, एक मेरा भाई है उसका नाम सौरभ है, एक दीपक, दो भाई हैं मेरे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, ऐसे पकड़ के लेके गए मंदिर, जैसे तैसे लेके गए। तो वहां जाके ना मुझे ऐसे लगा जैसे सारे लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि पंडित जी ने मुझे एकदम अपने पास बिठा लिया और पूजा करनी स्टार्ट कर दी। यूजुअली वहां आपने देखा है कभी पंडित किसी को अपने पास नहीं बिठाते, नहीं, क्राउड बहुत होता है, रश होता है बहुत, और पूजा भी करवा रहे हैं, ऐसे कोई यज्ञ चल रहा था उस टाइम पे। और फिर उन्होंने मुझे ना ऐसे पैसे दिए, बल्कि मंदिर में तो पैसे चढ़ाते हो ना, आपको कोई देता नहीं, तो ऐसे लग रहा था सब मेरा वेट कर रहे थे। और उस दिन मैं पहली बार रोई कि माता बस बहुत हो गया, मेरे को कुछ तो दो। मैं रोई उस दिन पहली बार, मेरे पेरेंट्स ने रोते हुए देखा, चिल्ला चिल्ला के रोई हूँ मैं उस दिन, जी भर के। उस दिन से मुझे लगा कि यार अब ठीक हो रही है तू। अच्छा, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ? डॉक्टर ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, उन्होंने कहा कि पता नहीं कब होंगे, कितना टाइम लगेगा, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला। तो चेंजेस आप कैसे पूछो, इन अ गुड वे? इन अ गुड वे, रिकवरी फेज। अच्छा, तो जैसे मैं पहले फिजिकली ठीक हुई, फिर मेंटली ठीक हुई। फिजिकल ठीक होना मेरे लिए उतना बड़ा टास्क नहीं था जितना मेंटली ठीक होना था। अच्छा, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਲੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? देखिए, जैसे आप स्किन और उसकी बात कर रहे हो, तो मेरी नई स्किन आई है, मेरा रीबर्थ हुआ है,
ऐसे स्किन गई है लेयर्स में, आई विल शो यू फोटोज। हाँ ये हाँ। पूरी स्किन उतर के नई स्किन आई है, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰੀ पूरी ਹੈ? बॉडी की। ਓਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਉਤਰਦੀ ਸੀ? दर्द ऐसा होता था कि ईचिंग बहुत होती थी, ईचिंग की बाद जलन हाँ। होती थी। जहाँ ईचिंग कर ली ना आपने बहुत हाँ। ज्यादा, वहाँ कल को जलन, पूरे दिन आप जलन में मर रहे हो। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 महीने की प्रोसेस थी। जब मैं आपको बोल रही थी ना मैं रात को सोती नहीं थी, तो मैं पूरी रात ईचिंग ही कर रही होती थी। ਓਹੋ। मतलब ईचिंग करके। ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं। ਪਤਾ ਸੀ? नहीं, ना डॉक्टर ने कभी बताया ना मुझे पता था कि स्किन नहीं आएगी। ਅੱਛਾ। बस वो दिख रही थी कि अब आ रही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मेरी स्किन में ऐसे कर रही हूँ ना, इसके बाद इसका क्या होगा। पर गॉड ग्रेस वो स्किन नहीं आई, और ऐसी आई कि कोई दाग धब्बे थे भी मेरे शरीर में तो वो नहीं रहे। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? मेरे को लगता मेरी पिगमेंटेशन थी थोड़ी बहुत। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਬਰਥ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਚਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਸ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? विल पावर, योगा, मेडिटेशन एंड माई डाइट। ਓਕੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਯੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਸਵੈਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ। हाँ जी। जी। तो हम बात करेंगे मेंटली देन फिजिकली, राइट। तो मेंटली मैंने कहा कि जैसे विल पावर से आप ठीक होते हो, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार लाइफ में जितनी मर्जी मेरे को मरने वाली स्टेज आ जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगी। जनरली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो गिव अप नहीं करती। हाँ जी। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहती हूँ जो भी ऐसी या ऐसी कोई बीमारी फेस कर रहे हैं, या कोई ऐसी स्टेज में है लाइफ की जहाँ उनको लगता है कि अब इसके बाद उनकी लाइफ नहीं रह पाएगी जी। या अब तो एंड है, तो वो एक बार दोबारा सोचें कि लाइफ बहुत कीमती है। लाइफ की ना हम कभी कभी ना रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप ना लाइफ की कीमत उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में ना एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, और हम तो बस थोड़ी सी बात होगी नहीं यार मैं सुसाइड कर लूंगा, वो कर लूंगा, नहीं। लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। तो उस लाइफ में हम, और अगर आप ऐसे फेस में हो जहाँ आप मेडिकली किसी भी चीज से जूझ रहे हो, तो दवाइयों से ज्यादा आपकी विल पावर काम करेगी। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए नहीं यार हो जाएगा, मैं कर लूंगी, वो विल पावर। अब आप बात कर रहे थे योगा एंड मेडिटेशन की, तो जैसे ही मेरी बॉडी में रिकवरी स्टार्ट हुई, मैंने थोड़े थोड़े आसन शुरू किए, जिसमें कि सूर्य नमस्कार मैं करती थी, और जैसे कि स्टैंडिंग आसनास है जो भी है, जैसे कि ताड़ आसन हो गया, कैटन का हो, ताकि मेरी बैक रिकवर हो पाए, क्योंकि इस जर्नी में मेरी बैक बहुत दर्द करती थी। लेटे रहना, जिस इंसान को पूरा दिन लेटे रहना होता है उसकी कमर कहीं ना कहीं टूट जाती है, ये सब लोगों को पता ही होगा। तो उसके लिए जो आसन है उसका नाम है कैट एंड काउ, ऐसे स्क्वीज एंड स्ट्रेच योर बैक। तो वो करती थी, सूर्य नमस्कार मैंने करने स्टार्ट किए। उसके बाद मैं जिम जाती थी क्योंकि मेरी मसल बहुत वीक हो गए थे, तो मसल ट्रेनिंग करती थी, साथ में मैं मेडिटेशन कर पाती थी। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में डेथ देख लेते हो ना, तो आप भगवान के एक स्टेप क्लोजर चले जाते हो। बिल्कुल। तो आई कैन फील डीप इनहेल एंड एक्सहेल करती थी, अनुलोम विलोम करती थी, और इसी सब चीजों से मुझे लगता है मेरी रिकवरी हुई है। बट मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी, जब तक आप इसमें अपनी डाइट इंक्लूड नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो डाइट तुसी वेजिटेरियन हो? प्योर वेजिटेरियन। अरे ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਓ, ਬਟ वेजिटेरियन ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ डाइट ਕਿਵੇਂ फॉलो ਕੀਤੀ? देखिए मुझे और लोगों का तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वेज जो डाइट होती है उसमें काफ़ी पावर है, और अब तो ये लोग वेस्टर्न वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न में वीगन कल्चर अब बहुत फॉलो हो रहा है ना। तो मैंने जो डाइट ली उसमें मैंने ये इंश्योर किया, जिस दिन से मैं बीमार होना स्टार्ट हुई थी एंड तक कि मैं 3 मील हमेशा लूं, और उसमें मैं वेजिटेबल्स लेती थी, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड और प्रोटीन, जैसे कि पनीर ले लिया या कुछ। ये मैं मम्मा को बोलती थी कि मम्मा अगर मैं किसी दिन ऐसे भी हो जाऊँ ना, बेड पे पड़ी जाऊँ, तो मेरे को खाना खिला देना। ये मेरे को ना चाहे भगवान मैसेज देते थे या मेरे जो प्रीवियस लाइफस्टाइल था, तो मैं खाना नहीं छोड़ा मैंने।
लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हो, चाहे आप थोड़ा सा ही खाओ बट खाना जरूर खाओ, क्योंकि खाना छोड़ना एक सॉल्यूशन नहीं है जी। तो मैंने खाना उस टाइम पे प्रॉपर। ਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4-5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ, ਡਰੈਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਰੈਸ ਡਿਸੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो यही क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा, डॉक्टर से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब भी आपको कोई स्किन डिजीज होता है तो उसकी पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता कि आपको इसी चीज से ये हुआ है, बट उनकी जो प्रीवियस स्टडीज थी, रिपोर्ट्स थी, उसमें ये बताया गया है कि मैं उससे पहले अश्वगंधा ले रही थी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होता है। अश्वगंधा तो कहते बहुत चंगा होता शरीर लिए। देखिए मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि अश्वगंधा या कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे लिए बुरा होता है, पर विदाउट एनी अच्छे डॉक्टर की सलाह के बिना हमें वो नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मैं एक डॉक्टर से मिली हूँ आयुर्वेदिक, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उनका नाम डॉक्टर अशोक बिश्नोई है ना। अच्छा, वो चंडीगढ़ में उनका अपना क्लिनिक है। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि देखो हमारी बॉडी के 3 टाइप होते हैं, वात, पित्त एंड कफ जी। अब जो चीज वात वाले को सूट करेगी वो पित्त वाले को नहीं कर सकती। जो चीज आपके लिए अच्छी है, अश्वगंधा आपके लिए अच्छा होगा नो डाउट, पर मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने ऐसे देखा है कि लोग देखा देखी में ना, कि दोस्त ने बोल दिया कि यार तू ये खा ले, तू शिलाजीत ले ले, अश्वगंधा ले ले, एक बार डॉक्टर को दिखाओ आयुर्वेदिक, वो अपनी बॉडी चेक कराओ, वो रेकमेंड करते हैं तो जरूर लो, उसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, बट अगर वो आपकी बॉडी के लिए सही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अश्वगंधा खाने ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? देखिए ये एक डॉक्टर की प्रीवियस स्टडी से एक रिपोर्ट में आया है, ऐसा नहीं कह सकते कि 100% उसकी वजह से हुआ, बट आयुर्वेदिक डॉक्टर से जब मिली हूँ तो उन्होंने भी यही कहा कि ड्यू टू अ लॉट ऑफ हीट। और जब भी आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हो ना तो उसकी लैब टेस्टिंग इतनी नहीं होती, क्योंकि जब आप एलोपैथी दवाई ले रहे हो तो उसकी तो टेस्टिंग हुई होती है। तो अब अश्वगंधा में उसमें और क्या क्या मिक्सिंग है यू नेवर नो, बिल्कुल, है ना। तो दोनों ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी और एलोपैथिक डॉक्टर ने भी, पीजीआई में जो है, पीजीआई में आपको पता ही कि सबसे अच्छे डॉक्टर पीजीआई में ही है ना, बेस्ट डॉक्टर, तो उन्होंने भी सेम बोला। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੀਲਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ weight lose ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਖਾਓ, ਚਰੈਤਾ ਖਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਹੋ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो ये सारा कुछ किवें तुसी शुरू किया? हाँ जी, तो बात ना, जैसे आपने अभी इनको बोला कि आप सलाह के बिना ना लो, तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठी हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने बॉडी में नहीं लगाती हूँ, जैसे स्किन पे मैं नहीं लगाती, कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाती उसके बाद से, तो मैं फिर भी ठीक दिखती हूँ, है ना, फेस मेरा ठीक है। तो जरूर एक्सटर्नल चीजें जो होती है ना वो आपको उतना अच्छा नहीं दिखा सकती जितना एक्सटर्नल इंटरनल चीजें दिखा सकती है, यानी कि आपकी डाइट। तो आप बजाय ये सब चीजें फॉलो करने के अपनी डाइट पे फोकस करो और एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो अपने में, चाहे वो जिम हो, वॉक हो, योगा हो, कुछ भी हो, तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट देगा, इससे ऊपर और कुछ नहीं है जी। और उसके साथ आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप ये सब चीजें कैसे कर पाते हो, तो देखिए पहले तो मैं योगा करवाती थी, मेडिटेशन करवाती थी, जिम ट्रेनिंग करवाती थी लोगों को, उससे काफी लोगों का मैंने वेट कम करवाया है, चेंजेस लाए हैं काफी लोगों की जिंदगी में। तो उसके बाद मुझे लगा जैसे कि भगवान ने मुझे करवाया हो कि मुझे हीलिंग भी करनी चाहिए। अच्छा। जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपने टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी मैं ऑरा हीलिंग रेकी के थ्रू करती हूँ। अच्छा,
ਤੇ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਕੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? एक्चुअली आपकी बात मुझे बहुत फनी लग रही है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अच्छा। एक्चुअली रेकी क्या होती है कि हम हर एक इंसान ना किसी पावर पे बिलीव करता है, किसी न किसी भगवान पे बिलीव करता है। बिल्कुल। वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, यूनिवर्स में कोई भी भगवान मान लो आप, है ना। तो हमारा जो रेकी टीचर का काम होता है वो क्या होता है, मीडियम बनना। जैसे कि जो आपके जो गार्डन एंजल्स है, आप जिस पे बिलीव करते हो, या आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ईस्ट ਹੁੰਦੇ, हिंदी पंजाबी च ईस्ट कह लिए, ईस्ट होते हैं। हाँ। हम उनको कॉल करते हैं कि प्लीज आप इनकी हीलिंग के लिए आओ। तो ऐसे आपको वो हील करते हैं, और आई एम जस्ट अ मीडियम, वो आपको हीलिंग देते हैं। और इट्स जस्ट अ पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज नथिंग नेगेटिव। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई भूत दिखते हैं कुछ, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव एनर्जी। मतलब ये सोचने वाली गल है ना कि मतलब सिर्फ अखा बंद करके कोई बंदा थोड़े लिए मतलब अंदर ही अंदर प्रे कर रहा है और तुसी कोल बैठे ठीक हो रहे हो। देखिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्स पे बिलीव करते हो तो आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन एनर्जी को फील तो कर पाते हो, या अपनी लाइफ में कभी तो फील किया होगा। तो बस वही डिवाइन एनर्जी आपको हील कर रही है, दैट्स इट, जस्ट सिंपल टेक्निक जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? देखिए, मैं लोगों को योगा जो सिखाती हूँ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवाती हूँ तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाती हूँ। जैसे कि अब आप बोलो कि मेरे पास कोई 30+ विमेन है जिसकी मसल्स जा रही है बॉडी की, तो मैं उनको ये सिर्फ योगा ही नहीं करवाऊंगी, साथ में मैं उनको वेट ट्रेनिंग भी करवाऊंगी। क्योंकि मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली विमेंस को, कि जैसे ही आप 30 के बाद आपकी जो एज है उसमें आपकी जो मसल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ये आपको कैसे दिखेगा? जैसे कि आप अपने आप को टच करोगे तो यू कैन फील कि अब मास बहुत ज्यादा आपको लूज फील हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी से मसल जा रहे हैं और फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। इट डजंट मीन आप मोटे हो पतले हो। मैं चेक करके देख रही थी। इससे ये मैटर नहीं करता कि आप मोटे हो कि पतले हो, ये सबके साथ हो सकता है। तो उस टाइम में आपको मसल ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब यही सलाह करते हैं कि वेट ट्रेनिंग करो, मसल बिल्डिंग करो जी। तो मैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें करवाती हूँ और डाइट प्लान भी उसके हिसाब से बना के देती हूँ। कि तुसी ऑनलाइन क्लासां लेंदे हो? मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेती हूँ। पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि जब मैं बहुत बीमार थी तो डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ना बालों में ना बॉडी में जी। तो मैं ऐसे सोच रही थी, यार अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आता होगा जो ऑर्गेनिक होगा, जो मेरे लिए सूट होगा। डॉक्टर ने कहा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको लगता है कि ऑर्गेनिक है, केमिकल्स नहीं है, तो यू कैन यूज इट। तो मेरे को नहीं मिला उस टाइम पे। हाँ, मैं याद है मुझे, शायद मैं जॉनसन बच्चों का यूज करती थी, क्योंकि जो बच्चों के सोप होते हैं उसमें थोड़े केमिकल कम होते हैं। तो मुझे मिल नहीं पाया। तो अब मैंने यही है कि मेरा ये लाइफ का गोल है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई वो मैं लोगों को दूं। अच्छा। तो मैं अब एक स्किन केयर, स्पेशली हेयर केयर प्रोडक्ट, जिसमें कि मैं लोगों को ऑयल होगा, शैम्पू होगा और कलर्स होंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे कलर्स कम आते हैं जो केमिकल फ्री हो। आजकल सभी को कलर तो लोग लगाते हैं ग्रे हेयर्स के लिए, तो वो प्रोडक्ट बना रही हूँ, उस पर R&D कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुँचाऊँ ताकि लोग एक ऑर्गेनिक चीज़ को यूज़ कर पाए। अरे वाह, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? आप
सोचो कि हर दिन मेरे साथ ये होता था। अच्छा। जैसे कि आप किसी से भी मिलते हो कि आपने बाहर तो जाना है, दुनिया से मिलना ही है, हाँ और जी, हर किसी के साथ आप अपनी स्टोरी लेके नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। क्योंकि मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो विक्टिम कार्ड प्ले करूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मैं अब इसलिए मोटी हूँ। तो मुझे हर एक बंदा बोलता था, यार देख तो तेरी स्किन क्या हो गया है, देख ऐसे ऐसे तेरी स्किन को हुआ क्या है, तू इतनी मोटी कैसे होगी, तू अपने पे काम नहीं करती, यार तू कैसी योगा टीचर है, जब तू खुद ही फिट नहीं है तू लोगों को क्या फिट कराएगी। उनको कौन समझाए कि मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, वही बड़ी बात है। अब मैं और जैसे ना, अब आप किसी भी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हो तो आप दवाइयाँ लेते हो, तो बहुत लोगों के साथ होता है, उनका वेट गेन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो मैं लोगों को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि दुनिया आपको जितना मर्जी बोले कि आपका वेट गेन हो गया है, आप बहुत कमजोर दिख रहे हो, आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपकी बॉडी है, आप उसको समझो, क्योंकि जब भी हम कोई किसी मेडिकल कंडीशन से बाहर आ रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते कि अबे कैसे कम होगा। तो टेक योर टाइम, आराम से बॉडी को समझो और धीरे धीरे प्रोसेस से ही कम करो। अगर आपका वेट बढ़ गया और आपने इंटेंशनली उसको एकदम से कम करने की सोची और आपने अपनी डाइट पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने सोचा मैं तो खाना खाना छोड़ दूंगी, हाँ, कि पतले होना ताई मुंडा पसंद करे, है ना, तो फिर तो आप मर ही जाओगे। तो इससे अच्छा है टेक योर टाइम। लोग दुनिया कुछ भी बोले, मैंने धीरे धीरे किया, पहले बॉडी को समझा कि मेरी बॉडी पे ये चीज काम कर रही है, ये नहीं कर रही, फिर उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाया, उसको फॉलो किया, और फिर मैंने अब 15 से 20 किलो का वेट जो कम किया है वो ऐसे ही किया है। मतलब चांसेस है। नहीं, मतलब मैं ही सोच रही हूँ कि योगा ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸਨ ਯੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜੇ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਗਾ बहुत अच्छा, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ देख के ਮੈਨੂੰ तो लग रहा है योगा बेस्ट है इस टाइम। जी, देखिए जो हमारे पूर्वज थे वो साइंटिस्ट थे, बिल्कुल, और आज ही इसको ना जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो वाली स्टडीज मानते हैं। जैसे कि आप सूर्य नमस्कार ले लो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है कि सारे मसल्स आपके यूज हो जाते हैं अगर आप सूर्य नमस्कार ही केवल कर लो तो, है ना। तो योगा में भी, मेडिटेशन योगा में भी ऐसी बहुत सारे आसन बने, चीजें बनी है जो हमें अब समझ आ रही कि यार उस टाइम पे उन्होंने कैसे सोच लिया इतना ज्यादा। तो अब हम ना धीरे धीरे अपने पुराने कल्चर पे आते जा रहे हैं, और वेस्टर्न लोग उस पर काम कर रहे हैं, पर हम इंडियंस नहीं कर रहे। जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ योगा का ट्रेंड बहुत ज्यादा हाइप है ना, योगा की, या वीगन कल्चर। वीगन कल्चर हमारा पुराना कल्चर ही तो है ना। जैसे कि अब हम खाते हैं आजकल की बाजरे की रोटी, ये रोटी खा लो, रागी की रोटी, पुराना कल्चर ही तो है जो वापस आ रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना आप रूटेड रहो, और मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी, इसको प्लीज हाईलाइट करा के लोगों को बताना। जैसे कि हमें कोई भी आता है कि वेस्टर्न कल्चर से, जैसे कि ऑलिव ऑयल ले लो या कुछ ले लो, तो उससे ज्यादा मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें बुरी हैं, पर जो आपके जीन्स में, जो आपके माँ बाप ने खाया है, आपकी दादा दादी ने खाया है, वो चीज आपको कभी हार्म कर ही नहीं सकती। तो आप अपने जो आपकी जेनेटिक फूड है, जो आपने बचपन से खाया है, वो ही खाओ। जैसे कि अब हम पंजाब के कल्चर में लेते हैं तो यहाँ सरसों बहुत ज्यादा होती है, सरसों का तेल, तो जितना अच्छा आपके लिए सरसों का तेल और घी है ना, उतना वो ऑलिव ऑयल आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि और कोकोनट ऑयल वर्क ज्यादा किन लोगों के लिए करता है, जो साउथ में होता है, हाँ, तमिल, है ना। वो परमात्मा ने कुछ सोच समझ के चीजें एक पर्टिकुलर जगह पे बनाई है। तो हमें कभी भी ना एक वेस्टर्न जगह चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होके देखना चाहिए कि यार मैंने बचपन से क्या खाया था, मेरे माँ बाप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देसी खाना पीना जड़ा साडा, जिसको हम बोलते हैं यार सबसे पहले ये छोड़ दो, क्यों छोड़े। हमें ना बस उसकी क्वांटिटी मेंटेन करनी है और सही टाइम पे खाना है, बट खाना वही है जो हमारे। श्वेता, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ ਔਰ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਖਾਓ, ਇਹ ਖਾਓ, ਉਹ ਖਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए मैं मतभेद में बिलीव नहीं करती हूँ,
बस लोगों को एक बार गाइड करना चाहती हूँ। हम्म, और काफ़ी लोगों ने, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स ने यही चीज़ें फॉलो करके अपने 30-35 किलो तक, मैंने बहुत लोगों का वेट कम करवाया अरे सिर्फ उनको उनके रूट तक पहुंचा के। वाह, जैसे कि अब पंजाब में सीजनल आजकल साग है हम्म, ना, अगर हम उसको छोड़ के हम सोचे कि हमें वेस्टर्न कुछ मंगवा के खा लो जो कि इम्पोर्ट होके आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना, तो वो कितना गलत है। नेचर ने सोच समझ के कोई चीज बनाई है। आजकल Season. सरसों का साग खाने का ही सीजन हम्म, है ना। तो जैसे अब पंजाब में आजकल वो खाते हैं, पिन्नियां खाते हैं। हाँ, क्यों खाते हैं? क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, हम्म, गर्मी देने के लिए। वो ना खा के हम कुछ और चीज खा लें तो क्या उसका बेनिफिट रह गया। बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ। और काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि जो रजुता है, जो करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट है, उनकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो सीजनल चीज़ें होती है जो आपके आसपास है, आप उसको प्रेफरेंस दो, ना कि वेस्टर्न से कोई चीज़ आई जो पता नहीं कहाँ से आ रही, कितने दिन उसको फ्रिज में रखा है, यू डोंट नो। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ।